बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum student. We start our class with the name of Allah who is most beneficent and merciful. This is class 7 and the period is English language text. It's our second video. In our previous lecture, we have studied our unit number 9. It was newspaper. Now, today we will move on our unit number 10. It is suspense story. So student, it's common practice. In our childhood, we have heard many fairy tales from our grandma. And at that time, we reached the fairyland in our imagination. But when we grown up, our interest has been changed and we have started to read suspense story. So here question is that what is suspense story? Suspense story is the kind of story in which reader turns page till end to know what will happen in end to the character. It means that suspense story increase our curiosity to know what will be happen in end. Supernatural stories, detective stories and adventure stories are the example of suspense story. If we want to write suspense story, we must follow its feature. So what are the features of suspense story? The feature of its suspense stories are introduction, action, complication, climax, resolution. Introduction, in which we will tell about the characters and setting. Setting means the place where the story is taking place. Action, we will discuss different characters action or action of different characters in this feature. Complication, it is interesting section in which we will see the problem of different characters. Climax, it is most interesting part. After that we will know the resolution, and the last section is resolution, in which we know how character react to outcome. These are the feature of suspense story, and if we will write suspense story, we must use present tense and past tense to make suspense stories. Now come to the reflecting, in which they are asking that have I ever read suspense story? Yes, I have many times, like Alice in Wonderland and Pole to Pole with Michael Palin. Both are suspense stories. Further that they are asking, have I ever watched any suspense movie? Yes, I have watched The Addams Family. It is suspense movie. Further they are asking that what made this movie suspenseful? Its animated cartoon characters and their actions made this movie suspenseful. So I am suggesting you must watch The Addams Family if you want to watch suspenseful movie. Now come to the extract. Carrie's War. Carrie's War basically is a novel. In Carrie's War is 1973 English children novel written by Nana Borden. Nana Borden was born
in 19th January 1925 and was died in 22 August 2012. She was English novelist and children writer. She wrote this novel during World War II. Carrie's War, often read in school for its literary and historical interest. Carrie's War got Phoenix Award in 1993. Before going to start its extract, I want to tell its short frame of this story. Carrie and her younger brother Nick are evacuated and stayed with a shopkeeper, Mr. Evans, who dominates her gentle but weak younger sister, whom the children called Auntie Lou. During World War II, another evacuee who Carrie has befriended, Albert Sandwich, is staying at dilapidated country house called Dorade Bottom with Mr. Evans' older sister and her disabled cousin John go to bed. Their English housekeeper Hepzibah Green was reported to be wise woman. Nick and Carrie became the friend of Albert and John and spent lot of time with each other and heard many mysterious stories about Dorade Bottom. It was near to the Dorade Grove. What is Dorade Grove? Dorade Grove was dark place where the ancient priests of Dorade religion practiced their ritual ceremony, magic and sacrifice centuries before. Now come to the extract, Carrie's War by Nina Borden. Carrie and Nick were due to go Dorade's Bottom with Auntie Lou 2 days before Christmas, but Auntie Lou was ill. कैरी और डोरेट के लिए ये ज़रूरी था कि वो डोरेट बॉटम कैरी और निक के लिए ये ज़रूरी था कि वो आंटी ल्यू के साथ क्रिसमस से 2 दिन पहले डोरेट बॉटम जाते, लेकिन उस वक्त आंटी ल्यू बीमार थी. शी कफ्ड ऑल मॉर्निंग एंड हर आईज वर रेड रिम्ड. वो मुकम्मल सुबह पूरी तरह से खांसती रही और उनकी आईज के अराउंड रेड सर्कल हो चुके हुए थे. रेड रिम मीन्स रेड सर्कल. आफ्टर मिड डे डिनर, दोपहर के खाने के बाद, मिस्टर एवंस केम इनटू द किचन एंड लुक्ड एट हर कफिंग ओवर द सिंक. मिस्टर एवंस किचन में आए और उन्हें देखा जब वो सिंक के ऊपर झुककर खांस रही थी. यू आरंट फिट टू गो आउट, ही सेड. सेंड द चिल्ड्रन. आप बाहर जाने के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं, उन्होंने कहा. आप बच्चों को भेज दीजिए. आंटी ल्यू कफ्ड एंड कफ्ड. आंटी ल्यू खांसती रही और खांसती रही. I thought I had go tomorrow instead. Hepzibah will know I'm not coming now. It's getting so late. I'll be better tomorrow. मैं कल तक ठीक हो जाऊंगी, मेरा ख्याल है. हैप्जिबा जान गई होगी कि हम आज नहीं आ रहे क्योंकि इस टाइम बहुत देर हो चुकी हुई है. आंटी ल्यू ने कहा. I'll want you in the shop Christmas Eve, Mr. Evans said. मिस्टर एवन ने कहा, मैं आपको शॉप पे देखना चाहता हूँ. The children can go, earn their keep for a change. अब बच्चे जा सकते हैं, अब वो अपने लिए खुद से कुछ कर सकते हैं. It will be a heavy go, Samuel. वो एक भारी हंस होगा, सैम्यूल. They can manage between them. वो दोनों आपस में मैनेज कर लेंगे. There was a short silence. उसके बाद एक हल्की सी खामोशी हो गई. Auntie Lou avoided the children's eyes. वो बच्चों की तरफ नहीं देख रही थी. Then she said uneasily. फिर उन्होंने बेचैनी से कहा, It will be dark before that they get back.
उस वक्त तक काफी रात हो जाएगी जब तक ये वापस आएंगे। फुल मून, मिस्टर एवन सेड, मिस्टर एवन ने इशारा किया कि आज पूरा चांद है, इट्स मीन के कंप्लीट डार्क नहीं होगा। He looked at the children, at Nick's face and then at Auntie Liu. उन्होंने पहले निक के फेस की तरफ देखा और फिर आंटी लियू की तरफ देखा। She began to blush painfully. तकलीफ से उनका चेहरा सुर्ख हो गया था। He said in a quiet and ominous voice. उन्होंने quiet and threatening वे में कहा, You have not been putting ideas in their heads. I do hope. मुझे उम्मीद है कि तुमने इनके दिमागों में कोई उल्टे सीधे ख्याल नहीं भरे होंगे। आंटी लियू लुक्ड एट द चिल्ड्रन टू। आंटी लियू ने भी बच्चों की तरफ देखा। हर एक्सप्रेशन बैक दैम नॉट टू गिव हर वे। वो बच्चों को, उनके एक्सप्रेशन से लग रहा था कि वो बच्चों को जाने नहीं देना चाहती। कैरी फेल्ट इम्पेशेंट विद हर। कैरी ने उनको देखकर बेचैनी महसूस कर रही थी। नो ग्रोन अप शुड बी सो वीक एंड सो सिली। किसी भी बढ़ते हुए बच्चे को इतना बेवकूफ और इतना कमजोर नहीं होना चाहिए। बट शी वॉज सॉरी एज वेल। लेकिन उसे बहुत अफसोस हुआ। शी सेड इनोसेंटली। उसने बहुत मासूमियत से कहा, वॉट आइडिया मिस्टर इवन। कौन सा ख्याल मिस्टर इवन। ऑफ कोर्स वी हैड लव टू गो। जाहिर सी बात है हमें जाना अच्छा लगेगा। वी डोंट माइंड द डार्क। हमें अंधेरे से कुछ नहीं होगा। देयर्स नथिंग टू माइंड। यहां माइंड करने के लिए कुछ है भी नहीं। शी सेड टू निक एज दे ट्रस्ट अलोंग द रेलवे लाइन। उसने निक से कहा जब वो आहिस्ता आहिस्ता, ट्रस्ट मीन वॉक स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता रेलवे लाइन के साथ जा रहे थे। वॉट इज देयर टू बी स्केयर्ड ऑफ। वहां डरने के लिए होगा भी ही क्या। जस्ट अ फ्यू ओल्ड ट्रीज। सिर्फ पुराने दर। निक सेड नथिंग, ओनली साइड। इसने कुछ नहीं कहा, बस उसके मुंह से एक डीप साउंड आई। साई डीप साउंड। कैरी सेड, कैरी ने कहा, ऑल दैट क्वीर प्लेस स्टफ इज जस्ट अंटिल यू बीइंग सुपरस्टिशियस। सुपरस्टिशियस पर्सन जिनके फॉल्स बिलीफ होते हैं। और उस कैरी ने कहा कि हर ऐसी जगह जहां स्टफ इन लाइन होती है, क्यूर मीन्स इन लाइन, जहां इन लाइन स्टफ होती है वहां आंटी लियू सुपरस्टिशियस हो जाती हैं। यू नो हाउ सुपरस्टिशियस शी इज। तुम्हें नहीं पता वो कितनी सुपरस्टिशियस हैं। टचिंग वुड, वुड टच करना। नॉट वॉक अंडर लैडर्स, लैडर के नीचे नहीं चलना। एंड थ्रोइंग सॉल्ट ओवर हर शोल्डर व्हेन शी हैज स्पिल्ड सम। जब उनसे कोई चीज फैल जाती तो वो अपने शोल्डर के ऊपर सॉल्ट थ्रो करती। वो इतनी सुपरस्टिशियस थी। आई एम नॉट सरप्राइज्ड मिस्टर एवंस गेट क्रॉस विद हर समटाइम्स। मुझे हैरत नहीं होती जब मिस्टर एवन उनकी बहुत सारी बातें अक्सर नहीं मान रहे होते। शी इज सो स्केयर्ड। वो तो बहुत डरने वाली खातून है। शी हैड जम्प्ड एट हर ओन शैडो। वो तो अपने शैडो से को भी देखकर डर जाती, जंप कर जाती थी। बट व्हेन दे रीच द ग्रोव, ग्रोव मीन्स ग्रुप ऑफ ट्री, जहां पर दरख्त का एक झुंड होता है, ग्रुप होता है, उसे कहते हैं हम ग्रोव। कैरी फेल्ट अ लिटिल लेस बोल्ड। उसे थोड़ा खौफ महसूस हुआ। इट वॉज ग्रोइंग डस्क। शाम का टाइम था। स्टार्स वर पिकिंग आउट इन द कोल्ड स्काई अबव देम। सितारे उनके ठंडे आसमान के ऊपर नमूदार हो रहे थे। एंड इट वॉज सो क्वाइट। वहां बिल्कुल खामोशी थी। सडनली देयर एयर सीम टू बी सिंगिंग। अचानक उनके कानों में सुरों की आवाज आना शुरू हो गई। कैरी विस्पर्ड, देयर्स द पाथ डाउन। वो रास्ता है जो नीचे जा रहा है। बाय दैट स्टोन, उस स्टोन की तरफ। निक पेल फेस ग्लीमर्ड एज लुक्ड एट हर। निक का जो पेल फेस था, येलो फेस था, वो अचानक से चमक उठा जब उसने उसकी कैरी की तरफ देखा। ही विस्पर्ड बैक। उसने दोबारा आहिस्ता आवाज में कहा,
यू गो, आई विल वेट हियर, तुम जाओ, मैं यहाँ इंतजार करूंगा. डोंट बी स्ली, बेवकूफ मत बनो. कैरी सॉलोड, कैरी ने चबा चबा कर कहा. देन प्लीडेड विद हिम, और उसके साथ आर्ग्यू करने लगी. प्लीड मीन्स आर्ग्यू करना. डोंट यू वॉन्ट अ नाइस मिन्स पाई, क्या तुम्हें एक मजेदार मिन्स पाई नहीं चाहिए? वी माइट ईट अ मिन्स पाई, हम शायद वहां जाके मिन्स पाई खाएं. एंड इट्स नॉट फार, और वो ज्यादा दूर भी नहीं है. Until you said it wasn't far down the hill, वो पहाड़ से ज्यादा दूर नहीं है. Not much more than 5 minutes, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट्स का रास्ता होगा. Nick shook his head, निक ने अपना सर हिलाया. He screwed up his eyes, और अपनी आईज घुमाई. And put his hands over his ears, और अपने हाथ अपने कानों पर रख दिए. Carrie said coldly, all right, कैरी ने कहा ठीक है. Have it your own way, तुम अपना रास्ता लो. But it will be dark soon, लेकिन यहाँ जल्द अंधेरा हो जाएगा. And you will be really scared then, और फिर तुम्हें डर लगेगा. Much more scared by yourself than you would be with me, उससे ज्यादा डर लगेगा कि जब तुम मेरे साथ होते. इट्स मीन कि तुम्हें अकेले ज्यादा डर लगेगा मेरे साथ होने से. Dorades and ghosts coming to get you. Priest, Dorades means priest, और ghost तुम्हें ले जाएंगे. Wild animals too, यहाँ wild animals भी होंगे. You don't know, तुम्हें नहीं पता. I wouldn't be surprised, और मुझे कोई हैरत नहीं होगी. If there were wolves in these mountains, और अगर इन पहाड़ों में से wolves निकल आए. But I don't care, लेकिन मुझे क्या. Even if I hear them howling and snapping their jaws, अगर वो shout कर रहे हों या अपने jaws तेजी से बंद कर रहे हों, snapping तेजी से खोलना बंद करना jaws को. I shan't hurry, मैं तो जल्दी से अपना रास्ता बदल लूंगी. shan't अपना जो वे है उसे चेंज करने को कहते हैं कि मैं स्पीड में अपना रास्ता चेंज कर लूंगी. एंड शी मार्च ऑफ विदाउट लुकिंग बैक, और वो उस पीछे देखे बगैर चलना शुरू हो गई. वाइट स्टोन्स मार्क द पाथ थ्रू द यू ट्रीज, यू काइंड ऑफ ट्रीज है. जो वाइट स्टोन्स थे वो रास्ता बना रहे थे यू ट्रीज के दरमियान. एंड इन द स्टीप प्लेसेस देयर वर स्टेप्स कट इन द अर्थ, और जो स्टीप प्लेस थी वहां पर जमीन को काट कर स्टेप्स बनाए गए थे. एंड शोर्ड अप विद द वुड, और उन्हें वुड की सपोर्ट दी गई थी. शोर्ड सपोर्ट. शी हैडंट गॉन फार व्हेन शी हर्ड निक वेलिंग, जब वो दूर नहीं गई थी कि उसने सुना कि निक चीख रहा है. वेलिंग क्राइंग विद पेन. बिहाइंड हर, उसके पीछे. कैरी वेट फॉर मी, वेट, कैरी रुक जाओ, मेरे लिए रुक जाओ. शी स्टॉप्ड एंड ही स्किडेड इनटू हर बैग, वो रुकी और कैरी उसकी बैग के ऊपर स्लाइड कर गया. स्किडेड, स्लाइडेड. डोंट लीव मी कैरी, मुझे छोड़ के मत जाओ. आई थॉट इट वॉज यू लिविंग मी, मैं तो ये सोच रही थी कि शायद तुम मुझे छोड़ रहे हो. शी सेड मेकिंग अ जोक ऑफ इट, उसने इसलिए कहा कि थोड़ा सा एक फन हो जाए. टू कंफर्ट हिम, ताकि उसको थोड़ा जहनी सुकून मिल सके. एंड ही ट्राइड टू लॉफ, और उसने हंसने की कोशिश की. बट इट टर्न इनटू अ सॉब इन हिज थ्रोट, लेकिन वो हंसी की जो आवाज थी वो क्राई में चेंज होकर उसके हलक में ही आके रुक गई. सॉब, क्राई, साउंड ऑफ क्राई. सॉब, साउंड ऑफ क्राई. ही हंग ऑन द बैक ऑफ हर कोट, वो उसके कोट के ही ऊपर लटक गया. whimpering अंडर हिज ब्रेथ, और उसके मुंह से हल्की हल्की आवाज निकलना शुरू हो गई. whimpering मेकिंग अ लो साउंड. whimpering मेकिंग अ लो साउंड. as she laid the way down the path, और कैरी नीचे चलना शुरू हो गई. the yew trees grew densely, yew के दरख्त अब बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे थे.
some of them with covered with ivy. Ivy is climbing plant, जो दरख्तों के ऊपर चढ़ती हैं बेलें, उनको कह रहे हैं ivy that rustled and rattled, जो मुस्तकिल हिल रहे थे, like scales की तरह, तराजू की तरह, बैलेंस की तरह. She told herself not to be stupid. उसने अपने आप से कहा बेवकूफ मत बनो. But stopped to draw breath. लेकिन थोड़ी सी देर सांस लेने के लिए रुक गई. She said, do be quiet, Nick. क्या तुम खामोश हो सकते हो, Nick? Why? क्यों? I don't know. Carrie said, something. मुझे नहीं पता. बस. She couldn't explain it. वो उसको explain नहीं कर सकी. It was such a strange feeling. उसके पास अजीबो गरीब सा एहसास था. As if there was something here. जैसे यहाँ पर कोई चीज मौजूद हो. Something waiting. जो उसका इंतजार कर रही हो. Deep in the trees. दरख्तों की गहराई में. और deep in the earth. या जमीन की गहराई में. Not a ghost. वो कोई जिन नहीं था. Nothing so simple. वो कोई सिंपल सी चीज नहीं थी. Whatever it was had no name. शायद उसका कोई भी नाम नहीं था. Something old and huge. जो कुछ बहुत पुराना और बहुत बड़ा था. And nameless. और उसका कोई नाम भी नहीं था. Carrie thought and started to tremble. कैरी के दिमाग में ये सारे ख्यालात आए और उसने कपकपाना शुरू कर दिया. Nick said Carrie, listen. निक ने कहा कैरी सुनो. What for? किस लिए सुनूं? Shh. No sound at first. पहले तो कोई भी आवाज नहीं आई. Then she heard it. फिर उसने सुना. A kind of slow, dry whisper or sigh. एक आहिस्ता खुश्क सरगोशी की आवाज या एक आह की आवाज उसे सुनाई दी. As if the earth were turning in its sleep. जैसे जमीन टर्न हुई हो सोते हुए. और द ह्यूज नेमलेस थिंग वर ब्रेथिंग. या फिर कोई एक बहुत बड़ी सी चीज जिसका कोई नाम नहीं है वो सांस ले रही हो. डिड यू हेयर? क्या तुमने सुना? कैरी सेड. कैरी ने कहा डिड यू हेयर? क्या तुमने सुना? निक बिगन टू क्राई पिटियसली. निक ने हेल्प हेल्प चीखना शुरू कर दिया. पिटियसली अपील फॉर हेल्प. साइलेंस नाउ. खामोश हो जाओ. एक्सेप्ट फॉर हिज वीपिंग. उसके रोने के अलावा अब कोई आवाज नहीं थी. कैरी सेड ड्राई माउथेड. इट्स गोन नाउ. कैरी ने ड्राई माउथ से कहा अब वो चला गया. इट वॉजंट एनीथिंग. अब यहाँ कुछ नहीं है. देयर्स नथिंग देयर रियली. क्या वाकई यहाँ कुछ नहीं है? निक गल्प्ड. निक ने सांस अंदर ली. गल्प्ड सांस अंदर लेना. ब्रेथ इन. ट्राइंग हार्ड टू स्टॉप क्राइंग. और बड़ी मुश्किल से उसने अपने आप को क्राई करने से रोका. देन ही क्लच्ड कैरी. फिर उसने कैरी को पकड़ लिया. यस देयर इज नाउ. फिर दोबारा यहाँ पर. कैरी लिसन्ड. कैरी ने गौर से सुना. इट वॉजंट द साउंड शी हैड हर्ड बिफोर बट समथिंग क्वाइट डिफरेंट. ये उस जैसी आवाज नहीं थी जो उसने अभी सुनी थी बल्कि उससे थोड़ी मुख्तलिफ साउंड थी. आक्वेर मुस्तकिल सीक्वेंस में आती हुई. थ्रोटी पेनफुल. चकलिंग. चकलिंग मीन्स द साउंड वी हर्ड व्हेन वी थ्रो समथिंग. जब कोई चीज फेंकी जाती है तो जो उसकी साउंड होती है उसे चकलिंग कहते हैं. गॉबलिंग जैसे कोई चीज चबा रहा हो. ईटिंग समथिंग. गॉबलिंग मीन्स ईटिंग समथिंग. उस तरह की साउंड आ रही थी. दैट सीम टू कम फ्रॉम समवेयर अबव देम. उन्हें वो आवाज उनके ऊपर से आ रही थी. हायर अप द पाथ. रास्ते के ऊपर से. दे स्टूड स्टिल एज स्टोन. वो पत्थर की तरह रुक के खड़े हो गए. द साउंड वॉज कमिंग क्लोजर. आहिस्ता आहिस्ता वो आवाज करीब आती हुई सुनाई दी. रन कैरी सेड. भागो कैरी ने कहा. शी बिगन टू रन. उसने भागना शुरू कर दिया. स्टम्बलिंग मीन्स लॉस ऑफ बैलेंस. उसका बैलेंस जो है वो थोड़ा सा लूज हो गया था. स्टम्बलिंग मीन्स लूज ऑफ बैलेंस.
The big bag they had brought for the goose caught between her legs. जो बड़ा सा बैग उन्होंने गूस को पकड़ने के लिए लिया हुआ था वो उसकी टांग के दरमियान आ गया था. एंड ऑलमोस्ट थ्रू हर डाउन, और तकरीबन वो गिरने ही वाली थी. बट शी रिकवर्ड हर बैलेंस, लेकिन उसने अपना बैलेंस रिकवर किया. हर फीट स्लिपिंग एंड स्लाइडिंग, उसके पैर स्लिप कर रहे थे और स्लाइड कर रहे थे. शी रेन, वो भाग रही थी. एंड निक रेन बिहाइंड हर, और निक उसके पीछे भाग रहा था. एंड द क्रिएचर वॉट एवर इट वॉज, और जो वो क्रिएचर थी, वो जो भी थी, द गॉबलिंग थिंग्स, वो चीजें चबाती हुई आ रही थी. फॉलोड देम, और उनका पीछा कर रही थी. इट सीम टू बी कॉलिंग टू देम एंड कैरी थॉट टू फेरी टेल्स शी हैड रीड. ऐसा लगा जैसे वो उन्हें पुकार रही हो. और फिर कैरी को फेरी टेल्स याद आना शुरू हो गई जो उसने बचपन में पढ़ी थी. यू लुक बैक एट समथिंग बिहाइंड यू एंड वर कॉट इन इट स्पेल, अगर तुमने पीछे देखा तो उसके जादू में आ जाओगी. शी गैप्स, उसने अपनी ब्रेथ को कैच किया. डोंट लुक बैक निक, पीछे मत देखना. वॉट एवर यू डू, कुछ भी हो जाए पीछे मत देखना. द पाथ वाइंडेड एंड फ्लैटेंड एज इट केम आउट ऑफ द ग्रोव, जैसे ही वो जब ग्रोव से बाहर निकले वो रास्ता फ्लैट होता गया और बड़ा होता गया. एंड शी कॉट निक्स हैंड टू मेक हिम रन फास्टर, और उसने निक का हाथ पकड़ लिया ताकि वो तेजी से भागे. टू फास्ट फॉर हिज शॉर्टर लेग एंड ही फेल ऑन हिज नीज, इतना तेज भागे कि उसकी जो छोटे छोटे लेग्स थी अब वो आकर अपनी नीज के ऊपर गिर गया. ही मोर्न, उसने कहा. एज शी पुल्ड हिम अप, जब वो उसको ऊपर उठा रही थी. आई कांट कैरी, अब मैं नहीं भाग सकता कैरी, मैं नहीं भाग सकता. शी सेड थ्रो चैटरिंग टीथ, उसके दांत बज रहे थे. उसने कहा यू कैन, तुम कर सकते हो. नॉट मच फार्दर, ज्यादा दूर नहीं है. दे सॉ द हाउस देन, उसके बाद उन्होंने एक घर देखा. इट्स डार्क, जो कि डार्क था. टॉल चिमनी बल्ब ब्लूमिंग अप, जिसकी चिमनी से धुआं निकल रहा था. एंड लाइट्स इन द विंडोज, और विंडो में से लाइट्स नजर आ रही थी. वन लाइट क्वाइट हाई अप एंड वन लो डाउन, एक लाइट तेज थी और एक कम तेज थी. एट द साइड दे रैन ऑन रबरी लेग्स, वो रबरी लेग्स की से भागते हुए भाग रहे थे. थ्रू एन ओपन गेट, ओपन गेट से और अंदर की तरफ भागे. एंड अक्रॉस अ डर्टी यार्ड, और एक गंदे यार्ड की तरफ. टूवर्ड द लिट विंडो की तरफ. देयर वॉज अ डोर बट इट वॉज शट, वहां पर एक दरवाजा था लेकिन वो बंद था. दे फ्लंग देमसेल्फ अगेंस्ट इट, वो उसके अगेंस्ट गए. गोबल वॉज कमिंग बिहाइंड देम, वो उसके पीछे आ रहा था. वॉज क्रॉसिंग द यार्ड, अब वो यार्ड क्रॉस कर रहा था. प्लीज कैरी क्रॉक्ड, प्लीज क्वाइट श्योर दैट इट वॉज टू लेट, जल्दी करो कैरी, यकीन बनाओ कि वो हमसे थोड़ा दूर हो. दैट द क्रिएचर वुड गेट देम, बट द डोर ओपन इनवर्ड, लेकिन अचानक दरवाजा अंदर की तरफ खुला. लाइक मैजिक की तरह. एंड दे फेल थ्रू इट टू द लाइट वार्मथ एंड सेफ्टी, और वो रोशनी, गर्मी और हिफाजत में अंदर की तरफ चले गए. So student, this is our today's extract, Carry War. Now come to the vocabulary. Today we will read synonyms. Synonyms are words which have same meanings. Means one words have different meanings, like scare, frightened, afraid, worried, painful, alarmed. All have same sense. These words are called synonyms. Now come to writing workshop. What will you do in your writing workshop? You will write suspense story by following its features, like there is a story, a clown statue, in which first of all we will talk about introduction and action. We know that in introduction we will talk the characters of a story and its setting. So a girl in teens babysat for
अ वेल्दी फैमिली, एक गर्ल का इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है जो वेल्दी फैमिली के बच्चों की निगहदाश्त करती थी, उनको संभालती थी। दे हैड अ वेरी बिग हाउस विद लॉट ऑफ रूम फिल्ड विद आर्टफैक्ट्स एंड ओल्ड ऑर्नामेंट्स। फिर यहाँ पर सेटिंग दी जा रही है कि उनका एक बड़ा सा घर था जिसमें बहुत सारे कमरे थे, जिसमें उन्होंने आर्ट्स क्राफ्ट रखे हुए थे और बहुत सारे पुराने जेवरात टाइप की चीजें रखी हुई थी। अब नेक्स्ट आपका है एक्शन। एक्शन स्टार्ट हो रहा है। वन नाइट अ फादर टोल्ड हर दैट once she put the kid down and kids down and watch TV there and not go wandering around the house। उसके फादर ने कहा था कि आप जो है बच्चों के साथ नीचे की तरफ रहेंगी और वहां जो बेसमेंट है वहां टीवी देखेंगी, और ये बात याद रखिएगा कि आप पूरे घर के जो अराउंड है वो घूमेंगी नहीं। नाउ कॉम्प्लिकेशंस कम। वंस द किड आर asleep, जब बच्चे सो गए, शी रिट्राइज टू बेसमेंट टू वॉच टीवी, उसने टीवी में बेसमेंट में जाके टीवी देखना शुरू किया, बट शी कैन नॉट कंसंट्रेटेड ऑन हर शो, लेकिन वो अपने शो पर कंसंट्रेट नहीं कर सक रही थी। कॉम्प्लिकेशन में अब प्रॉब्लम आ रही है कि वो क्यों नहीं कंसंट्रेट कर सक रही थी, बिकॉज इन कॉर्नर ऑफ द रूम अ क्लाउन स्टैचू लुकिंग एट हर, क्योंकि रूम के कॉर्नर पर जो एक क्लाउन का स्टैचू खड़ा हुआ था वो कंटिन्यूसली उसे मुस्तकिल देखा जा रहा था। शी डिसाइडेड टू ड्रैप अ ब्लैंकेट ओवर द स्टैचू सो इट कैन इग्नोर हर। उसने सोचा कि मैं ब्लैंकेट से इस स्टैचू को ढांप दूं ताकि वो मुझे ना घूर सके और मैं भी उसे इग्नोर कर सकूं। उसके बाद सीक्वेंस, जो इवेंट्स हमारे सीक्वेंस में जा रहे होते हैं जिसमें कैरेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। एंड शी डिसाइडेड टू कॉल द फादर, उसने फैसला किया कि मैं फादर को कॉल करती हूँ एंड आस्क हिज परमिशन, और उनकी परमिशन लेती हूँ टू वॉच टीवी इन अनदर रूम, कि मैं दूसरे रूम में जाकर टीवी देख सकूं, बिकॉज शी इज फ्रैग्ड आउट बाय जाइंट क्लाउन स्टैचू इन बेसमेंट रूम, क्योंकि उसके हवास खत्म हो चुके हुए थे, वो अपने कॉन्शियस नहीं थी। वो जब उसने वो जाइंट क्लाउन स्टैचू को देखा कि वो उसकी तरफ घूर रहा है, उसकी तरफ देख रहा है, तो उसने सोचा कि मैं फादर को फोन करती हूँ और उनसे बोलती हूँ कि मैं दूसरे रूम में जाके टीवी देखूं। तो ये है सीक्वेंस जिसके अंदर जो कैरेक्टर्स हैं वो एक जगह पर इन्वॉल्व हो रहे हैं, फादर एंड वो गर्ल एंड किड्स। उसने परमिशन मांगी उनके भी बारे में। अब आ रहा है क्लाइमैक्स, जो इसका बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पार्ट होता है। लिसन वेरी केयरफुली, बहुत गौर से सुनो। सेज द मैन टू द गर्ल, आवर चिल्ड्रन हैव बीन कंप्लेनिंग अबाउट अ क्लाउन दैट कम्स इनटू देयर रूम इन द मिडल ऑफ द नाइट। हमारे बच्चों ने तो खुद हमसे ये कंप्लेन की हुई है कि उनके रूम में आधी रात को कोई क्लाउन आता है। We just thought it was nightmare, हम समझे शायद ये एक डरावना ख्वाब हो। अब ये क्लाइमेक्स है। We don't own a clown statue, हमारे घर में तो कोई क्लाउन स्टैचू है ही नहीं, यानी कि उनके घर में वो कोई क्लाउन स्टैचू नहीं था, लेकिन वो बच्चों को नजर आ रहा था। You needed to get the kids and get out of the house. Now I'll call the police. तुम्हें चाहिए कि तुम बच्चों को लो और घर से बाहर चली जाओ, मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूं। उसके बाद हमारे पास है रिसोल्यूशन। द गर्ल हैंग्स अप द फोन, टर्न्स अराउंड टू लुक एट द कवर्ड क्लाउन स्टैचू। जब उसने टर्न होके देखा कवर्ड क्लाउन स्टैचू की तरफ, बट देयर इज अ ब्लैंकेट ऑन द फ्लोर, लेकिन वहां तो सिर्फ ब्लैंकेट ही पड़ा हुआ था। She hears step coming down the basement stair. वो सुनती है कि बेसमेंट के जो स्टेयर है वहां से कोई चलता हुआ आ रहा है। There were kids, वहां बच्चे थे। She took them and got out of the house. और उसने बच्चों को लिया और बहुत तेजी से बाहर चली गई। So you can see that in this story we have used present tense and past tense. And by following these features and with the help of present and past tense, you can write your own suspense story. It is your home task. So class, in this lecture, we have studied about preview, about stories, about suspense stories, about its features. In feature, we have studied about introduction, action, complication, climax,
sequence, complication, climax and resolution. And then we talk about reflecting, and then we have studied its extracts. Extracts was carry war. We have read and translate the extract, and then we studied vocabulary and writing workshop. It's our end of the lecture. In our new lecture we will meet inshallah. Till then, Allah Hafiz.